Hello students, this is the second part on the number system. Those who have missed the first part, I will give the link in description box. Go and watch so that you can understand the further exercises clearly. So here in this second part, we will discuss exercise 1.2 of NCERT and R.S. Agrawal, exercise 1E, and in exercise 1E, we will discuss only question number 1, 2, 3 and 4. Rest we will discuss in further exercises. So let's begin. Question number 1. The first, state whether the following statements are true or false. Also justify your answer. Every irrational number is a real number. Let me recall the flow chart of number system. In the first part, we discuss about the number system where we classify the numbers in 3 categories. First, real numbers. The second category was imaginary numbers, and there was a third category in which we put complex numbers. These 2 categories were about to study in higher classes, means in +2, and here we were discussing real numbers. So we further classified real numbers into 2 categories. First was rational number and the second was irrational numbers. Means in single term we can say that real number is a combination of rational numbers and irrational number. Further, there were many types of rational numbers, in which the first was natural number, second whole number, integers I or z, decimals, and we saw the types of decimal. First was terminating decimal numbers, the second was non-terminating recurring decimal numbers, and there was a third type which was irrational, non-terminating, non-recurring decimal numbers. So let's return on the question. Every irrational number is a real number. Yes, every irrational number, example √2, √3, pi, 0.1, 0.11, 0.111 and so on, these all are irrational number which comes in the category of real number. So our answer is true. Justification. Here we will give examples for justification. For example, √2 is an irrational which is also a real number. Next question. Every point on the number line is of the form √m. False. समझिए यहाँ पे कैसे नंबर लाइन पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये हो गया हमारा नंबर लाइन x, y, और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे यहाँ पे -2, -1 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे. क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. नहीं, सारे नहीं यहाँ पे. अब जैसे हम बात करते हैं 1 की तो 1 है √1 के वैल्यू. अगर हम बात करते हैं 2 की तो 2 इज़ द वैल्यू ऑफ √4. वैसे ही 3 इज़ द वैल्यू ऑफ √9. और ये सारे ही क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. ये भी नेचुरल नंबर और उनके वैल्यूज़ भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक तो ये सही है. लेकिन कह रहा था नंबर लाइन पे सारे नंबर्स. व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव है. जैसे पहले हम स्क्वायर समझते हैं. जैसे -2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, -2 इंटू -2. तो पहले हम साइन क्लियर करते हैं. माइनस माइनस प्लस 2 2 4, यानी जब हमने -2 का स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गया 4, और जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4. यानी अगर सिंपली हम कहते हैं √4 तो हमें ये नहीं पता चलता है कि ये -2 का स्क्वायर है या फिर +2 का स्क्वायर है, क्योंकि सिंपली वैल्यू आएगा 2. तो जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो √m के फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगा नहीं, वो पॉजिटिव होगा. तो ये हो गया फॉल्स. जस्टिफिकेशन में लिखेंगे negative numbers
on the number line are not in the form of root m for m is any natural numbers. And the last one, every real number is an irrational number. Yes, यहाँ पे मैं थर्ड का आंसर देता हूँ. Sorry, every real number is an irrational number. Our answer will be false. क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन नहीं है. रियल नंबर मीन्स नॉट इरेशनल नंबर. सो हमारा आंसर हो गया फॉल्स. रीजन में लिखेंगे यानी जस्टिफिकेशन में देंगे. रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ rational and irrational numbers. फिर क्वेश्चन नंबर 2, are the square root of all positive integers irrational? If not, give an examples. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं प्रोजेक्टर अभी ऑन कर देता हूँ ताकि तब तक वो ब्राइट हो जाए. सो क्वेश्चन नंबर 2 वाज, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो. कह रहा था एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे रूट अंडर 4 दैट इज़ 2, रूट अंडर 9 दैट इज़ 3, रूट अंडर 16 दैट इज इक्वल्स टू 4. और इन सारे के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है. अब जैसे रूट 2 ये तो इरेशनल हो गया, रूट 3 ये भी इरेशनल हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या रहता है, क्या सारे ही आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स? तो हमारा आंसर होगा नो. बहुत सारे वैल्यूज ऐसे आएंगे जिनके रूट वैल्यू रेशनल होंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आ सकता है. रूट 5 या फिर रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 6, रूट 7, कोई भी स्क्वायर रूट वाला वैल्यू नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए. तो सारे के लिए सेम ही मेथड्स हैं, तो समझिए यहाँ पे ध्यान से. कैमरा को फोकस कर लेते हैं. तो जरा ध्यान से समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम में 3 या फिर 4 नंबर के लिए आते हैं, ये उससे कम के नहीं आते हैं. जैसे हमें मिलेगा शो रूट 2 या फिर रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए. तो सारे को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही है. जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एनसीईआरटी का रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, और एक सुटेबल मेजरमेंट लेके यूनिट्स कट कर लें. जैसे मैं यहाँ पे 2 cm के एक यूनिट लेता हूँ. 1, 2, 3, मार्किंग गलत हो गई है.
फिर से मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन लिया और यहाँ पे मैं छोटू सीएम पे मार्क कर लेता हूँ। वन टू CM, अगेन 2 पे ये रहा, फिर 5 के बाद सीधे आए 4 पे, 4 के बाद 1 2 सीधे आ गए हम 2 पे। ये हमने 2 CM पे कुछ सेगमेंट्स ले लिए। ओके, और ये होगा मेरा नंबर लाइन x से y। तो नंबर लाइन है तो हम यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा हमारा -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हम √5 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसका वैल्यू 2 से ज़्यादा और 3 से कम होगा, क्योंकि √9 का वैल्यू होता है 3 और √4 का वैल्यू है 2। तो जाहिर सी बात है √5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हमें करना क्या है, जो 0 है इसको हम मान लेंगे O और ये हो गया हमारा A, ये हो गया 1 यूनिट। अब O पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे। ये 90 डिग्री पे हमने मार्क किया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया A से। अब 1 यूनिट इस सेगमेंट में से भी कट कर लेंगे, यानी हमारा 1 यूनिट है कितना, 2 CM का हमने 1 यूनिट लिया था, तो ये रहा हमारा 2 CM। 2 CM पे हमने कट कर लिया और ये हो गया हमारा पॉइंट B, दैट इज़ 1 यूनिट। अब O से B को ज्वाइन कर दे। इन ट्रायंगल OAB, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो OB यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, ये रहा स्क्वायर, प्लस OA का वैल्यू ये भी हमने 1 ही यूनिट लिया था स्क्वायर, इक्वल्स टू 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1 और ये हो गया √2, यानी जो OB आया ये हो गया √2 यूनिट। अब जरा ध्यान दें, अगर हमारा क्वेश्चन रहता है √2 रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो अब ये जो OB मिला है हमें √2 यूनिट का, इसको रेडियस एज्यूम करते हैं और एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन को। ये जहाँ पे भी कट करता है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आया, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं PQ या फिर कोई भी एक अल्फ़ाबेट, और नीचे लिख देते हैं जो P है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं √2 को, लेकिन हमें यहाँ पे √2 नहीं रिप्रेजेंट करना है, हमें काफ़ी आगे बढ़ना है, हम जाएंगे √5 तक। तो यही साइकिल चलते रहेगा। अब हम आएंगे वापस से पॉइंट B पे और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट से पॉइंट हमने मिला लिया, लाइन से लाइन को मिला लिया। एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे, वो गलत नहीं होना चाहिए, तो मार्क्स करते हैं, हो सके पूरा कंस्ट्रक्शन ही काट दिया जाए, वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और फिर वापस से हम इसमें से भी हम 1 यूनिट कट करेंगे। तो ये हमने मेजर कर लिया 1 यूनिट। 2 पेंसिल यूज़ करने के बेनिफिट्स ये हैं कि बार बार हमें शार्प नहीं करना पड़ता है, तो कंपास में लगा के इसको आप सिर्फ आर्क या फिर कट वगैरह करने के लिए यूज़ करेंगे। और एक दूसरा पेंसिल जो बाहर है इसको हम इजीली शार्प कर सकते हैं ताकि वो कंपास से निकालने और फिर इंसर्ट करने का टाइम हमारा सेव हो। ये हमारा पॉइंट C और ये भी हमारा 1 यूनिट। तो OC कितना होगा, फिर वापस से कैलकुलेट करते हैं, यानी अब हम इस बार कैलकुलेट करें ट्रायंगल OBC में। फिर से जो हमारा हाइपोटेनस OC है ये होगा रूट अंडर परपेंडिकुलर यानी BC के स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे इस केस में हो गया OB के स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर BC कितना आया है 1 यूनिट और OB ये रहा √2 यूनिट। स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिए दोनों के, 1 के स्क्वायर हो गया 1 और √2 के स्क्वायर हो गया 2 अंडर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2 √3, यानी ये आ गया हमारा OC √3 यूनिट। फिर हमें √3 पे भी नहीं रुकना, अगर √3 रिप्रेजेंट करना था तो फिर इसको रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे जहाँ पे भी कट करता है वो हो जाता है हमारा √3 का वैल्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे √4 के लिए, फिर वापस से C पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। समझने के बाद फिर वीडियो प्ले करेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे वीडियो देखते हुए, और प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है मैथमेटिक्स में। तो ये रहा, फिर वापस हम इसमें से कट कर लेते हैं 1 यूनिट, ये था हमारा 1 यूनिट, ये हमने मेजर किया, ये होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट D और जो CD है ये भी है 1 यूनिट। D से हमने O को ज्वाइन किया, ओके। फिर रहते हैं वापस से हम इन ट्रायंगल
ओ सी डी में, और यहाँ से हम ओ डी के वैल्यू निकालते हैं। जो ओ डी है हाइपोटेनस वो होगा रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी सी डी स्क्वायर प्लस बेस ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ सी डी, यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में 1 यूनिट था यानी 1 स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ ओ सी इज रूट 3 यूनिट। स्क्वायर के लिए हमने स्क्वायर कर दिया उसका भी, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया 1 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 1 एंड 3 4, दैट इज इक्वल टू 2, यानी ये हो गया रूट 4 यूनिट, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। अब एक स्टेप हम और बढ़ेंगे रूट 5 को ऑब्टेन करने के लिए। तो फिर वापस से हम डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट से पॉइंट को हमने मिला लिया कंपास के, और लाइन से लेफ्ट साइड हमने लाइन से लाइन को मिला लिया, पॉइंट से पॉइंट और लाइन से लाइन। अब हमने इसको फिक्स करके 90 डिग्री पे मार्क कर लिया, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर इस लाइन से भी हम कितना यूनिट कट करेंगे 1 यूनिट, जो कि हमारा 2 cm था, तो हमने ये कट कर लिया यहाँ से, और ये होगा हमारा पॉइंट। डी के बाद ई आ गया, और ई डी है हमारा अगेन 1 यूनिट। ई से हमने ओ को ज्वाइन कर दिया, तो ओ ई कितना हो गया। अब हम आ जाते हैं राइट ट्रायंगल ओ डी ई में। इन राइट ट्रायंगल ओ डी ई हमें चाहिए ओ ई ना, तो ओ ई जो हाइपोटेनस है ये हो गया रूट अंडर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ई डी, यानी परपेंडिकुलर ई डी का स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे ओ डी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ ई डी इज 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर प्लस ओ डी है हमारा वहाँ पे 2 यानी 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, दैट इज इक्वल टू रूट 5, यानी ये हमारा ओ ई हो गया रूट 5 यूनिट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ओ ई यानी जो लेंथ हमारा रूट 5 आया है उसको रेडियस एज्यूम करेंगे कॉम्पस से, और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वो आर्क नंबर लाइन को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो जगह हमारा रूट 5 का वैल्यू। तो ये आ गया हमारा रूट 5, जो कि 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि रूट 4 तो ये तो 2 हो गया और 3 यानी रूट 9 के वैल्यू आ गया। तो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P, नीचे लिखेंगे हियर P इज रिप्रेजेंटिंग रूट अंडर 5। तो ऐसे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7 सारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं, क्या हमारी नंबर लाइन एक्यूरेट वैल्यूज बचा रहे हैं, यानी जो रूट 4 का वैल्यू जो 2 आया था, क्या अगर हम इसको रेडियस एज्यूम करके आर्क ड्रॉ करते तो ये 2 पे आता। चेक करते हैं, जैसे हमने यहाँ से ड्रॉ किया और ये एग्जैक्टली 2 पे आ रहा है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली एक्यूरेट है। तो सेम ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 रूट 5, क्वेश्चन नंबर 2 रूट 3, क्वेश्चन नंबर 3 रूट 10 और रूट 8 सॉल्व करें, फिर बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।